हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा मंथली करंटली अफेयर्स ऑफ दिसंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download in the Play Store. This application is very helpful to you, that will help you in our preparation. All the PDFs, all the current affairs, all the material, all the quiz questions are provided by us on this particular application only. So if you are a government job aspirant, you must have this Carriers Cloud application. Now, once you have downloaded the application, you will move and open it. Then you have to log in with your Gmail ID. Once you have logged in, you will be shifted to this page. Now, if you have purchased our course, then with the course will be providing you daily PDF. In this daily PDF will be giving you multiple questions of the daily, as well as 20 questions quiz will be provided you on the daily basis. Then if we shift to weekly, we will be providing you with the weekly information also, such as weekly quiz of 50 questions each, then weekly PDF combining of whole week's important current affairs. Then if we are talking on monthly basis, we will be doing same on the monthly basis also, that will be providing you with a compiled PDF of the whole month's current affairs that are way important to you. This, if you are in English language student, then you will be provided with English, and you can switch language between English as well as Hindi. Then you should also know we help aspirants to prepare for banking exams also. Multiple quiz questions will be provided you, multiple quiz will be provided you on the daily basis, on monthly basis, on weekly basis, so that it will boost your confidence. Then we'll be providing you information related to various banking exams also. And apart from this, we have started an initiative that is very helpful, that providing you questions with topic wise, such as apps and web portals, important days, books and authors, obituary, national affairs, international affairs, important days, sports, defense, everything. Each topic will contain individual information of that particular month that will boost your preparation to a next level. This is very important. These topic wise PDFs are very important. This will help you very much in boosting your preparations. Alright friends, so you should also know, if you use our code Vikas10, we will help you by giving extra 10% discount. So go grab this offer, this will help you a lot. This is a very useful application for an aspirant. So I urge you to go and download and check our plans. तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सब कमिटीज अपॉइंट की गई थी टू लोअर क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर किस योजना के अंडर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर 2 सब कमिटीज डेवलप की गई थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहली सब कमेटी आपकी 10 मेंबर की कमेटी थी, जिसको हेड करने वाले एक इसरो के सीनियर साइंटिस्ट थे। उनका नाम है KR मंजूनाथ जी। KR मंजूनाथ जी के द्वारा इसको हेड किया गया था, एंड ये थी टू एक्सप्लोर फिजिबिलिटी ऑफ अडॉप्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोचेस। सेकंड कमेटी आपकी रहेगी, इसको हेड किया गया था जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सौरभ मिश्रा के द्वारा, एंड ये किस लिए थी? ताकि टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल एक्सेप्टेड मॉडल्स एंड एनी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग मॉडल। ऑलराइट, तो ये आपकी 2 कमेटी सब कमेटीज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। Next question. In which city did Union Defense Minister Rajnath lay the foundation stone for the Defense Technology and Test Center और BrahMos Manufacturing Center of DRDO? ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन ले कर आ गया? तो कहाँ लोग किया गया था? ये लखनऊ यूपी में किया गया था। लखनऊ यूपी में क्यों किया गया था? कि जो डिफेंस एक्सपो था आपका 2020 में का, डिफेंस एक्सपो ऑफ 2020 यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसीलिए आपकी इसी के दौरान, आपके डिफेंस एक्सपो के दौरान ही ये डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट सेंटर और ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बाय DRDO ये लॉन्च करे गए थे। यहाँ पे इनका फाउंडेशन स्टोन लेकर आ गया था। अगर लखनऊ यूपी की बात तो ये हो गई। वाराणसी की आपको पता ही है कि यहाँ पे फर्स्ट रॉकवे सर्विस डेवलप होने वाली है यूपी की, जो कि एक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ की जा सकती है। देन यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने वाला है।
नेक्स्ट, नेम द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जो अभी पहला इंडियन बैंक बना है टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया यूपीआई अलॉन्ग विद एनपीसीआई। एनपीसीआई के साथ मिलके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके कौन सा बैंक अभी एक फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एक्टिवेट कर रहा है थ्रू यूपीआई? तो वो इंडसइंड बैंक आपका। कौन सा बैंक बनेगा वो? इंडसइंड बैंक बनेगा आपका। और ये कहाँ पे? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड के डी मनी करके एक प्लेटफॉर्म है, उनके साथ यूपीआई एक्सचेंज होगा मनी का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, इसके साथ आप याद रखना इंडसइंड बैंक का इनके एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? वो रहेंगे सुमंत कथपालिया जी, सुमंत कथपालिया जी। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाली वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिन्होंने उसको स्पेस में भेजा एरिना 5 रॉकेट के साथ? ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा एंड इवन आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेलीस्कोप रहने वाला है, जो कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑल 1 2 3। इसको बनाने में कुछ याद रखना, इसको बनाने के लिए अराउंड काफ़ी खर्चा हुआ था और इसको बनाकर एरियन 5 रॉकेट से इसको स्पेस में लेके गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये इट्स कमिशनिंग इन स्पेस विल टेक 6 मंथ और आपको ये लगता है 5 से 15 साल तक का इनको टाइम लग जाएगा इसके पूरे मिशन को कंप्लीट होने में। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो ये इनका स्पेस टेलीस्कोप है ना, जब इस पर गोल्ड प्लेटिंग है, बहुत एक थिन लेयर, एक लेयर ऑफ गोल्ड प्लेटिंग है जो आपकी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि ये किस पे वर्क करता है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप? ये आपकी इंफ्रा रेड रीजन पे वर्क करेगा, मतलब इंफ्रारेड रेज को अपनी टेलीस्कोप में लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर उससे आपका रिसर्च डाटा फाइनलाइज करेगा। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ड्यूल मॉडल व्हीकल डीएमवी? किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया जो आपकी रोड्स प्लस रेलवे ट्रैक्स पे वर्क करेगा? और ये किस पे रन करेगा? डीजल पे रन करेगा ये आपका। तो जापान के द्वारा ये वर्ल्ड का पहला डीएमवी डेवलप करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट को लॉन्च किया टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करने के लिए किस बैंक के द्वारा ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स लॉन्च करे गए? तो कौन सा बैंक के द्वारा ये ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स लॉन्च करे गए हैं, बताइए ज़रा। ये करे गए हैं इंडसइंड बैंक के द्वारा ही। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर बैक्ड अप विद एन इंश्योरेंस ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस तक ये बैक किए जाते हैं। ठीक है, और ये ओनली इंडियन बैंक टू सिक्योर अ बैंड ए इन द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की। व्हाट वाज द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर नवंबर 2021, जो कि एक 12 साल का रिकॉर्ड हाई था। 2005 से लेके अभी तक का ये रिकॉर्ड हाई होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा है, जो कि 14.23% का है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप यार 14.23 रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन को अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर किन को बनाया गया है? अतुल कुमार गोयल को अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट किन के द्वारा की गई? एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया। इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया पंजाब नेशनल बैंक का। और याद रखना सोमा शंकरा प्रसाद, इनको भी एमडी एंड सीईओ बनाया गया है यूको बैंक का सोमा शंकरा प्रसाद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज टॉप द 3rd एडिशन ऑफ द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट? ये ARIIA मैंने आपको बताया है। ये ARIIA क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है? ये जो मेजर इंस्टीट्यूशन है ना, मेजर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनकी रैंकिंग करता है। इनकी रैंकिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो अभी 3rd एडिशन ऑफ ARIIA की रैंकिंग में किसने टॉप किया? IIT मद्रास ने। फर्स्ट पे, सेकंड पे IIT बॉम्बे रहा और थर्ड पे रहा आपका IIT दिल्ली। नेम द कंट्री जिसने अभी, विच कंट्री बिकेम द 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो कौन सा कंट्री बन गया है 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? वो बन गया है आपका इजिप्ट।
इसके साथ याद रखना जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है किन के द्वारा डेवलप किया गया था, ब्रिक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। ब्रिक्स में आ जाता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये 2015 में बना था। ठीक, चलो नेक्स्ट। इन दिसंबर आरबीआई एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर नो योर कस्टमर अपडेशन इन बैंक अकाउंट स्टिल। कब तक अपडेट करने की लिस्ट इन्होंने बढ़ा दी है, तो 31 मार्च 2022 तक अब आप अपनी अपडेट कर सकते हैं केवाईसी के लिए। इससे पहले ये 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड थी। In December, Dash become the first Indian state to launch life certificate system for pensioners. ओडिशा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये पहली इंडियन स्टेट बनी जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम्स लॉन्च किया पेंशनर्स के लिए। इसके साथ साथ याद रखना एक DIARY ई डायरी करके भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा। ये ई डायरी क्या रहेगी, जो सरकार का भी जो काम होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, डेली इन्फॉर्मेशन जो उस पर प्रोवाइड की जाती है वो आप सिटीजन्स अब एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस ई डायरी पोर्टल यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। तो ये भी सरकार के द्वारा ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, Which company launched Safeguard, a tokenization solution to become first payment platform to tokenize Visa, Mastercard and RuPay? वो पहली पेमेंट कंपनी जिन्होंने टोकनाइज कर दिया पेमेंट प्लेटफॉर्म को ऑन कार्ड्स वीज़ा, मास्टरकार्ड एंड रूपे, तो वो बनी है फ़ोनपे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डाटा, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किस स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप किए जाएंगे 9900 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। तो कहाँ पे किए जाएंगे ये, जैतापुर महाराष्ट्र में इनको बनाया जाएगा 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। और इसके साथ साथ याद रखना अगर पूछा जाए कभी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपका कहाँ रहेगा, महाराष्ट्र में लोकेटेड है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, अभी दिसंबर में Dash become the first Indian insurance company to sign United Nations Principle for Responsible Investment on Environmental, Social and Governance Issues। तो कौन सी वो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी इंडिया की जिन्होंने यूएन के प्रिंसिपल्स पे एक साइन किया, तो वो बनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन शूटर जिनको अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से ऑनर किया गया ड्यूरिंग द पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ 2021। अवनी लखेरा जी, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अवनी लखेरा जी जो कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये शूटिंग से बिलोंग करती है। इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से ऑनर किया गया पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान। एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ऑनर किया वो भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी के द्वारा इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू से ऑनर करा गया ड्यूरिंग द पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। अवनी लखेरा जी जो कि इंडियन शूटर हैं, इनको शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला, याद रखना, और इनको टोटल 2 ओलंपिक मेडल मिले हैं इस बार ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक्स। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नगडक पेलगी खोरलो। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड रहेगा नगडक पेलगी खोरलो, इसको याद रखना। इसी को अवार्ड को ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भी बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भी बोला जाता है नगडक पेलगी खोरलो को। ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जाए तो वो भारत रत्न रहेगा। एंड याद रखना जो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग या नगडक पेलगी खोरलो है, ये पहले फॉरेनर बने हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट इंडियन जिनको इससे सम्मानित किया गया वो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था पहले कि नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था USA के द्वारा, वो आप फिर से कमेंट कीजिए क्योंकि बहुत कम लोगों ने नीचे कमेंट किया था, मैंने चेक किया। सबको ये आंसर पता होना चाहिए कि मोदी जी को USA के द्वारा किस एक सिविलियन एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो एक रिस्पेक्टफुल अवार्ड था, बताइए क्या, USA के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड द जर्मनी डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक साइन किया गया एक एग्रीमेंट फॉर लोन फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। सूरत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड जर्मनी डेवलपमेंट बैंक ने एक MOU साइन किया 442.26 मिलियन यूरो लोन के लिए। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, जिन्होंने और वो सक्सीड करेंगे अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को। तो याद रखना कार्ल नेहमर ये अपॉइंट किए गए चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया और ये सक्सीड करेंगे अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो आप
इंटेंजिबल होता है जो आप टच नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स हो गई, आप उसको टच नहीं कर सकते, ये कल्चरल हेरिटेज होते हैं। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सम्मान देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द 16th सेशन ऑफ IGC 2021 किसको अभी इस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की? तो दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में मनाया जाता है, इसको ऐड किया गया इंटर गवर्नमेंटल कमेटी IGC की 16th सेशन जो ऑब्जर्व किया था ऑफ यूनेस्को कि हमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, तो दुर्गा पूजा को अभी इस लिस्ट में ऐड करा गया था। और चीज़ याद रखना, कुंभ मेला 2017 में ऐड किया गया था ICH की लिस्ट में, और योगा को 2016 में ऐड किया गया था इस ICH की लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव, ये हम देख चुके हैं, दुर्गा पूजा को इंस्क्राइब किया गया था। नेक्स्ट, हु वन द चिली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, चिली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता? और वो यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। तो कौन बने हैं, वो नाम बताइए उनका। वो हैं गैब्रियल बोरिक, ये यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर किनको घोषित किया गया? अभी ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया है। और किस लिए अपॉइंट किया गया है? ताकि ये उस उत्तराखंड स्टेट में स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बढ़ा दें अमंग यूथ। ठीक है, यूथ्स में स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऋषभ पंत को, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया उत्तराखंड का। नेक्स्ट कह रहा है, नेम द इंडियन नेवी सेकंड इंडिजिनियस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास, जो कि अभी वेंट फॉर द फर्स्ट सी ट्रायल इन दिसंबर 2021। फर्स्ट सी ट्रायल के लिए गया, वो था INS मॉर्मोगोआ। INS मॉर्मोगोआ भी फर्स्ट सी ट्रायल के लिए गया था। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपको याद रखना है 19 दिसंबर, जो कि आपका गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन ये अपने फर्स्ट सी ट्रायल पे गया था INS मॉर्मोगोआ। इसके साथ INS वेला याद रखना, वो एक सबमरीन है। ठीक है, और एक INS विशाखापट्टनम भी अभी इंडियन नेवी में अभी ऐड किया गया है, कमीशन किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहले इंडियन शटलर कौन है जिनको सिल्वर मेडल मिला मैन सिंगल्स की कैटेगरी में इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के लिए। तो वो बने किदाम्बी श्रीकांत, इनको मिला सिल्वर मेडल। ठीक है, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड किनको मिला है? लॉ केन यू, ये सिंगापुर के हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला। सिल्वर किदाम्बी श्रीकांत, और फिर ब्रॉन्ज मेडल मिला लक्ष्य, ये इंडियन है, लक्ष्य सेन इंडियन है। एंड इनके साथ ही साथ आपको याद रखना है एंडर्स एंटोनसन, ये आपके डेनमार्क के हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। गोल्ड ले किन यू जो कि सिंगापुर के हैं, एंड किदाम्बी श्रीकांत ये पहले इंडियन बने जिनको सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया BWF की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के लिए। नेक्स्ट, BWF का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, क्या मेरे को बता सकता है कोई? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट वाज रिसेंटली क्रिएटेड, और जिसने अभी 3 नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की हैं, उस स्टेट का नाम बताओ। तो वो रहेगी नागालैंड। नागालैंड ने अभी नई 3 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट की हैं। नेक्स्ट, उस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को एसेस करने के लिए, उनको और इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज, या फिर कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। एंड इसमें बिम्स्टेक के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? पेनेक्स 2021। इसमें याद रखना बिम्स्टेक के मेंबर कौन से होते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये आपके बिम्स्टेक के मेंबर्स रहते हैं जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र, पुणे में। नेक्स्ट आपको बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने पहली GIS बेस्ड, GIS क्या होता है? GIS होता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम लॉन्च किया कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए अंडर छावनी प्रोजेक्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया था? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा ये फर्स्ट GIS बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम लॉन्च किया गया कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लोगों के लिए। अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया पहला एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट 2021? नीति आयोग। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, एम भी याद रखना, एम का भी हाथ था। नीति आयोग एम क्या है? और मैं लिख ही देता हूँ, CDF यूनाइटेड नेशन कैपिटल्स डेवलपमेंट फंड अलॉन्ग विद अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग ने मिलकर पहला
एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट 2021 को लॉन्च किया टू हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिसने टॉप किया इन द डिजिटल पेमेंट्स फॉर फिजिकल ईयर 2020-21। ये डाटा रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा वो। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इनके एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा जी। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर रहेगा वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट फायर की सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल जिसका नाम रहेगा प्रलय। अब प्रलय की बात करें तो इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था। इसको टेस्ट फायर कहाँ किया गया है? उड़ीसा में टेस्ट फायर किया है। एपीजे अब्दुल कलाम के आइलैंड के ऑफ कोस्ट इसको टेस्ट किया गया था उड़ीसा में, प्रलय को, जो कि एक सरफेस टू सरफेस गाइडेड ब्लास्टिंग मिसाइल है। इसको डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है। ठीक है, तो इंडिया में पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2021। मतलब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के हिसाब से, जो कि रिलीज किया गया था हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया की रैंक रहेगी 3rd विद 54 यूनिकॉर्न्स। ठीक है, और इसमें टॉप करने वाली बनी है यूनाइटेड स्टेट्स विद 487 यूनिकॉर्न्स। तो मतलब सबसे ऊपर आ जाता है यूएसए आपका, फिर आ जाता है चाइना, एंड फिर आ जाता है आपका इंडिया इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जो कि हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फर्स्ट ट्रांस लोन ऑफ 250 मिलियन यूरो फॉर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट यूपी। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस बैंक ने टाई अप किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ? तो वो रहेगा आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, अभी किस कंपनी ने एक साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि $169.5 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जा सके फॉर पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स? तो किन के द्वारा ये दिया गया, आप बता सकते हैं मुझे? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? ये जो डेडलाइन है ना आरबीआई के द्वारा 30 जून 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है। वाइल टोकनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। नेक्स्ट हम एक बुक की बात करेंगे या एक ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे अरूप रॉय चौधरी के द्वारा। मतलब अरूप रॉय चौधरी की बायोग्राफी की बात करेंगे, ऑटोबायोग्राफी की, जिसका नाम रहेगा द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ये अरूप रॉय चौधरी की ऑटोबायोग्राफी है, ये बुक का नाम है। इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया था? वेंकैया नायडू सर के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। अगर अरूप रॉय चौधरी की बात करें तो ये फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTPC लिमिटेड के और NBCC के। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लोई इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एशिया पावर इंडेक्स 2021 को लॉन्च किया। इसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी गई इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री आउट ऑफ 26 कंट्रीज। तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया की रैंक रहेगी आउट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज 4th, और इसमें टॉप करने वाली कंट्री बनेगी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, नीलमणि फूकन जूनियर, इन्होंने अभी कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड जीता? तो याद रखना, इन्होंने 56th ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। और दामोदर मौजो, इन्होंने 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जीता फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। नीलमणि फूकन जूनियर ने जीता 56th ज्ञानपीठ अवार्ड और दामोदर मौजो ने जीता 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। नेक्स्ट, अभी वीमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया फॉर द सेकंड टाइम? WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021 किनको मिला या किसको सम्मानित किया गया? एशली बार्टी को सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन है, इनको सम्मानित किया गया वीमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से, और वो भी सेकेंड टाइम, दूसरी बार। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया IXPE एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप टू कंडक्ट रिसर्च ऑन ब्लैक होल। ये आपका नासा के द्वारा एक मिशन था जो कि लॉन्च किया गया था, याद रखना, ब्लैक होल्स पे रिसर्च करने के लिए IXPE रे स्पेस टेलीस्कोप।
जनरल बिपिन रावत सर का भी हमने देखा दिसंबर मंथ में निधन हो गया था। पूछा जा रहा है किस साल में उनको इंडिया का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। तो 2019 में उनको पहला इंडिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। फिर आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली उनका निधन हो गया था। उनके हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा जिनमें वो ट्रैवल कर रहे थे, MI-17V5 हेलीकॉप्टर ये रहेगा। इनका निधन तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के कोनूर में इनके हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, ठीक है। और ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे 2019 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डैश किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को ऑब्जर्वर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस का ग्रांट कर दिया गया। तो याद रखना UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्रांट कर दिया ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, ये इंडिया एंड फ्रांस का इनिशिएटिव था। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था एंड अभी रिसेंटली 101वीं कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया वो बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ISA की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और ये कहाँ पर है, हरियाणा का कंट्री पूछ लें तो इंडिया। ठीक, चलो नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि किस कंट्री के द्वारा चेयरमैनशिप अज्यूम की गई काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO। ये क्या होता है, इसको रैट्स बोलते हैं, RATS SCO। तो रैट्स की चेयरमैनशिप किसने अभी अज्यूम कर लिया फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। तो इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप अज्यूम कर ली है, रैट्स SCO की, याद रखना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली जस्ट रिसीव द शेड्यूल पेमेंट बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI। किस बैंक ने शेड्यूल पेमेंट बैंक का स्टेटस रिसीव किया RBI से, तो वो रहेगा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन। MD एंड CEO रहेंगे सतीश कुमार गुप्ता जी एंड इसका हेडक्वार्टर रहेगा नोएडा UP में। कर्नाटका बैंक ने अभी कितने डिजिधन अवार्ड जीते, तो याद रखना कर्नाटका बैंक ने 2 डिजिधन अवार्ड जीते बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा इन्होंने 2 डिजिधन अवार्ड जीते फॉर अटेनिंग हाईएस्ट भीम UPI ट्रांजैक्शन कंसेक्यूटिवली फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी इनको अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI टू इंक्रीज इट्स स्टेक टू 9.99% इन इंडसइंड बैंक। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना स्टेक इंडसइंड बैंक में बढ़ा रहा है टू 9.9%। और ये अप्रूवल किसके द्वारा मिला इनको, RBI के द्वारा। अभी फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीती फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम, तो मैग्नस कार्लसन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी 5th कंसेक्यूटिव टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती एंड ये 2012 से, आई गेस 2012 से लगातार वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर बने हुए हैं। इन्होंने 2011 से वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं और इन्होंने इस पोजीशन को मेंटेन रखा और लगातार 5वीं बार इन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किसको उत्तर प्रदेश की रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, तो हैदरपुर वेटलैंड को ऑफ उत्तर प्रदेश की रामसर साइट डिक्लेयर किया गया और ये 47th रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम 100% पेपरलेस। 100% पेपरलेस बनने वाली कौन सी गवर्नमेंट बन गई है, वो दुबई। इंडिया वॉज रैंक्ड डैश इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ऑफ 2021 वाइल डैश टॉप द लिस्ट। तो इंडिया की क्या रैंक रही, 56 रही इसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, और जिसने टॉप किया वो था आपका स्विट्जरलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली #केयर फॉर हॉकी कैंपेन को लॉन्च किया और इस कैंपेन की फेस किसको बनाया गया, रानी रामफल को। रानी रामफल से याद रखना इनको इनको अभी पद्मा श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में। ठीक है, पूछा जा सकता है रानी रामफल को किस पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्मा श्री 2020 में। एंड फिर पूछा जा रहा है इनको फेस बनाया गया कैंपेन का केयर फॉर हॉकी किस कंपनी के द्वारा, तो किस कंपनी ने इनको बनाया फेस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये फेस बनाई गई। नेक्स्ट, किन्होंने अभी मिस यूनिवर्स टाइटल जीता, 17वां एडिशन था इस मिस यूनिवर्स का जो कि इजराइल में हुआ था और ये तीसरी इंडियन बनी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स जीता। तो हरनाज सांधू जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स जीता और ये तीसरी इंडियन बनी मिस यूनिवर्स जीतने वाली। पहली थी सुष्मिता सेन, दूसरी थी लारा दत्ता और तीसरी बन गई हैं हरनाज सांधू। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती,
और उस जीत के साथ वो पहले उन्होंने अपनी फर्स्ट F1 ड्राइवर चैंपियनशिप रजिस्टर कर लिया 2021 की, तो वो बन गए मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन आपको याद रखना है, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है, रेड बुल कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर लुइस हैमिल्टन की बात करें तो इनको नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रिंस चार्ल्स के द्वारा। ऑलराइट, इन्होंने अभी अपनी 103 विक्ट्री रजिस्टर कर लिया, मतलब ये पहले F1 ड्राइवर बने जिन्होंने अपनी 100+ विक्ट्रीज को रजिस्टर किया है। और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये भी याद रखना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मतलब यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो कि इंट्रोड्यूस किया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसका नाम रहेगा धनरेखा। नेक्स्ट, वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने एक वीमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया छोला सर्वा शक्ति के नाम से, अलॉन्ग विद छोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस? तो वो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिन्होंने एक वीमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की छोला सर्वा शक्ति। याद रखना क्या नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक का? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसकी बात करें तो ये 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और वासुदेवन पठंगी नरसिम्हन जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किनको मिला ये टाइटल? टाइम मैगजीन के द्वारा एलन मस्क को इस टाइटल दिया गया, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, NTPC अभी प्लान कर रहा है टू इस्टेब्लिश इंडिया का पहला हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट NTPC डेवलप करेगा, और कहाँ पे? सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में डेवलप करेगा। नेक्स्ट, AIBA ने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया गया है? अब उसने अपना नाम चेंज करके IBA लिख दिया गया, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अभी RBI ने सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डैश। RBI सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड टू द सेक्शन 45(1)(e)(1) ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934, एंड इन्होंने अपॉइंट किया नागेश्वर राव YG को एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन को अभी रिसेंटली न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया ट्विटर का। प्रगाग अग्रवाल को नया CEO अपॉइंट किया गया, इससे पहले ये CTO थे, और ये जैक डॉर्सी को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है वो पहली PM कौन बनी है स्वीडन की? स्वीडन कंट्री की पहली PM किन को बनाया गया है, नाम बताइए? मैगडलेना एंडरसन, ये पहली प्राइम मिनिस्टर या पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है मैगडलेना एंडरसन स्वीडन की। नेक्स्ट, किस बैंक ने इंडिया का पहला स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट के नाम से? तो किन के द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये इंडिया का पहला स्टैंडअलोन डेबिट कार्ड या स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अभी NSO के द्वारा एस्टिमेटेड इंडिया की GDP ग्रोथ क्या फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022? तो इंडिया की जो GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड की गई है NSO के द्वारा वो है 8.4% की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास आ गई है? थाईलैंड के पास आ गई है। इससे पहले किसके पास थी? इटली के पास। और अब कह रहा है फिर इंडिया की प्रेसिडेंसी कब से कब तक है? 2022 से लेके 2023 तक। फिर 2021 से 2022 तक की प्रेसिडेंसी किसके पास है? थाईलैंड के पास। और 2020 से 21 की किसके पास थी? इटली के पास। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन C। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया एक सेविंग बैंक प्रोडक्ट जिसको महिला मित्रा प्लस बोला गया। ठीक है, सेविंग बैंक प्रोडक्ट महिला मित्रा प्लस किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो महिला मित्रा प्लस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा। मार्केट फेडरल बैंक की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन यहाँ के MD एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर रहेगा केरला में। नेक्स्ट, वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स किन को मिला, बताइए? वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को। याद रखना अंजू बॉबी जॉर्ज। ये किससे रिलेट करती हैं? ये फॉर्मर लॉन्ग जंपर है, मतलब लॉन्ग जंप इवेंट से ये रिलेट करती थी एथलेटिक्स की। इनको वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम वर्ल्ड एथलेटिक्स। नेक्स्ट, विच कंट्री इज डेवलपिंग द वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी? वर्ल्ड की पहली फर्स्ट सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी अलॉन्ग विद ओशनिक्स एंड UN हैबिटेट कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है? तो साउथ कोरिया ये डेवलप कर रही है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। साउथ कोरिया डेवलप कर रही है वर्ल्ड की पहली सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी।
नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, गीता गोपीनाथ। अगर आपको याद होगा गीता गोपीनाथ, तो ये फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी आईएमएफ की, और इनको अब प्रमोशन मिलके इनको आईएमएफ का पहला डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, गीता गोपीनाथ इंडियन ओरिजिन की हैं। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो इंडिया का पहला कौन सा इंडिजीनियस सर्वर है जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, जो कि राजीव चंद्रशेखर ने, व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि डेवलप किया गया है सीडीएसी अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो उस इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर का क्या नाम रहेगा? रुद्र, याद रखना, इंपॉर्टेंट। रुद्र वो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की बात की गई, कहाँ पे? देहरादून में। और इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, विच हैज़ द एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर। ठीक है, बात की जो इंडिया के दिल्ली से देहरादून की बात की जाए है इकोनॉमिक कॉरिडोर की, बोला जा रहा है कि दिल्ली से अगर आपको देहरादून जाना होगा अब, तो अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगेंगे आपको यहाँ पे जाने में, तो काफ़ी टाइम बचेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको किस स्टेट ने सरपास कर दिया गया है महाराष्ट्र को टू बिकम द इंडिया टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब एज पर द डाटा रिलीज बाय आरबीआई। आरबीआई के ने डाटा रिलीज किया कि गुजरात ने महाराष्ट्र को रिप्लेस कर दिया है, सरपास कर दिया है टू बिकम इंडिया टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया का टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया अब? गुजरात। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अभी विक्टर एक्सेल्सन जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क के, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। वाइल ताइवान की टाइजू यिंग जो कि ताइवान से बिलोंग करती हैं, इनको फीमेल ऑफ द ईयर अवार्ड्स का सम्मान मिला। आई रिपीट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क से हैं, इनको मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, वाइल टाइजू यिंग जो कि ताइवान की हैं, इनको फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of times with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.